Hello everyone, this is Shubha Sachdeva from Kendriya Vidyalaya number 1, Roorkee. I am explaining you chapter balance of payment. Earlier I have explained the meaning of balance of payment and the components of balance of payment in my previous videos. Today I am going to explain autonomous transactions and accommodating transactions and further chapter. So let's start with the autonomous and accommodating transactions. So let's start with autonomous and accommodating transactions. This is a balance sheet, balance of payment page. You can see that the area which is covered by the red balloon, you can see this circle, this you can understand this: visible items, export, invisible items, services, investment from income, unilateral receipts, and these all current account come under autonomous transactions. And from capital account, which part comes? Portfolio investment, FDIs, borrowings, and external assistance. All till external assistance, this all comes in autonomous transactions. ये तो चलता ही रहता है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स बाहर से चल रही हैं ये सब हमारी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स के अंदर आती हैं. इसकी वजह से हमारा बीओपी डिसबैलेंस होता है, डिसइक्विलिब्रियम में आता है. ईदर इट बिकम्स सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी. यहाँ तक हमारा सरप्लस और डेफिसिट रहता है. इसको ठीक कौन करता है? अब इसको ठीक करने के लिए हमारी आ जाती है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस. नीचे ग्रीन सर्कल आप देख सकते हैं. ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस हमारे मॉनेटरी अथॉरिटी करती है जस्ट टू बैलेंस द बीओपी. कि हमारा जो नीचे अकाउंट है ये 2100 आप ग्रैंड टोटल देख रहे होंगे, क्रेडिट एंड डेबिट साइड हमारा बैलेंस हो जाए. इसको बैलेंस करने के लिए हमारी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस की जाती हैं. तो autonomous transactions समझ में आया. These are also called above the line items, and accommodating transactions are only done if there is disequilibrium in BOP to correct the BOP identity, and these are called below the line items. So, autonomous transactions, a BOP transaction independent of the state of BOP that is undertaken on its own is autonomous transactions. अपने आप में हो रही है ट्रांजेक्शन. जिसको कुछ खरीदना है खरीद रहा है, बेचना है बेच रहा है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है. हम ये ट्रांजेक्शन्स किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन्स करे जा रहे हैं बस क्योंकि जिसको जिस चीज़ की नीड है. मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे बाहर से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मैं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ. बाहर वालों को यहाँ पे कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हो रहा है, तो वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. तो अपने बेनिफिट, अपने प्रॉफिट के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है वो सारी हमारी किस में आ जाती हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स के अंदर. Accommodating transactions are those transactions which are done specially at that time when there is disequilibrium in BOP. Otherwise, accommodating transactions नहीं की जाती. Accommodating transactions are dependent on the BOP situation, BOP identity. If there is deficit or surplus in BOP, then only the accommodating transactions will take place. Otherwise, accommodating transactions, that means official reserve transactions, will not take place. Autonomous are called above the line items and accommodating are called below the line items. Now we study the difference between the both. Autonomous, international economic transactions due to some economic motive like profit maximization. कोई भी अपने इकोनॉमिक मोटिव के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, वो सब ऑटोनॉमस के अंदर आएंगे. एंड अकोमोडेटिंग में क्या होगा? विच आर मेड टू बैलेंस द डेफिसिट और सरप्लस इन द बीओपी. अपने डेफिसिट या सरप्लस को जब बैलेंस करने के लिए हम कोई, हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी कोई भी अगर काम करती है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस जो करते हैं उसे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कहते हैं. ऑटोनॉमस आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स. एंड देन ऑल द आइटम्स इन द करंट अकाउंट. देखो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, करंट अकाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रही है वो सब हमारी ऑटोनॉमस है. प्लस कैपिटल की भी जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है वो सब हमारी किस में आते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस के अंदर. और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन सी होती हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, जैसे कि बोरोइंग फ्रॉम IMF, ड्रॉइंग फ्रॉम SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक से बोरो करना जब हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी बोरो करती है, तो ये सब हमारी क्या हो जाती हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड. यहाँ पे आपका अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस और ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है. अब एक नया टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसको ध्यान से समझेंगे. देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर विजिबल आइटम्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने पढ़ा विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांसफर्स, बी इट ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस आल्सो. these all come under balance of payment. Now balance of trade is only recording the balance of those transactions which are done for visible goods. जब हम सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विजिबल गुड्स का कर रहे हैं, उसके बीच में जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है
या डिसइक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं डेफिसिट या सरप्लस आ रहा है, जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. So balance of trade refers to the difference in the value of imports and exports of commodities only. यहाँ ध्यान में रखें, जो हम visible goods की बात करें, that is visible items only. जो भी हमारे visible goods हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, balance of trade. तो अब इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. एक फादर है जो बता रहा है आई एम बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बेबी है जो कह रहा है आई एम बैलेंस ऑफ ट्रेड. दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड is a very narrow thing which only gives incomplete information about the transactions, because if we only read about balance of trade, it gives us the information about those transactions which are done for visible goods only. But when we study balance of payment, it gives us the complete picture of the transactions done from abroad, done with the rest of the world. Complete picture in the sense we get to know about the export and import of visible goods also, invisible also, one-sided transactions, that means unilateral transfers also, and capital transfers also. So balance of payment is a wider term, comprehensive term, and balance of trade is a very narrower term. इससे अंदर आप समझ सकते हैं, ये आपका जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर ये जो ऊपर पिंक आइटम दिख रहा है, विजिबल एक्सपोर्ट 400, विजिबल इंपोर्ट 600. अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट्स आर ऑफ 600. इंपोर्ट मींस आउटफ्लो, डेबिट, पैसा बाहर ज्यादा गया है, अंदर कम आया है. तो ये जो 200 का है ये डेफिसिट में चल रहा है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डेफिसिट हो सकता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट नहीं होता अकाउंटिंग सेंस में. जब हम ऐसे अकाउंट बना लेते हैं इसका, तो नीचे हमारा ग्रैंड टोटल हमेशा इक्वल ही आता है, क्योंकि हम उसे बैलेंस कर देते हैं बाय यूजिंग ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस. यू कैन सी दिस. ये पूरा जो हमारा ये पिंक एरिया है ऊपर, पिंक एरिया हमारा क्या बता रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड. और ये कंप्लीट, अभी आप देखेंगे, ये देखो ये पूरा कंप्लीट क्या है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट. और ये पिंक एरिया हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. मीनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली. जो ट्रेडिंग गुड्स की हो रही है, विजिबल गुड्स की, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है. बट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, services and capital transfers. All the transactions which are taking place comes under balance of payment. When we talk about on the basis of concept, balance of trade is a narrow concept and balance of payment is a more comprehensive, that means wider term. It is wider term, broader concept. Balance, there may be surplus or deficit in BOP. जो अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा, import was of 600 and export was of 400. There was deficit BOP because import हमने ज़्यादा किया, that means outflow was more and inflow of foreign exchange was less. So deficit भी हो सकता है और surplus भी हो सकता है. But balance of payment is always balanced in accounting sense. When we make a balance sheet, ये हमेशा नीचे से balance दिखेगा. क्यों बैलेंस दिखेगा, बराबर दिखेगा, क्योंकि इसको बैलेंस किया जाता है बाय डूइंग सम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बाय आवर मॉनेटरी अथॉरिटीज. सो लेट्स स्टडी अबाउट समथिंग करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अभी हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स कम्स इन क्रेडिट आइटम. वाई एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसके बदले में पैसा इनफ्लो होगा. हियर हमें इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का देखना है. एक्सपोर्ट को ये मत समझना कि एक्सपोर्ट हो रहा है तो बाहर जा रहा है. नो, वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स. वी आर ओनली टॉकिंग हियर अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपोर्ट, कुछ चीजें हम बाहर बेच रहे हैं, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो दिस इज पॉजिटिव. जब हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम मुझे पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, दैट इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट साइड. So export and import of visible items, export and import of invisible items, and unilateral transfers. These first three items comes under current account, and the last, capital receipts and capital payments, comes under capital account. I hope this is very much clear to you. डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसको एक बार देख लेते हैं. करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, अभी हम पढ़ के आए पहले 3 चीजें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. और कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा आ जाता है प्राइवेट लोन्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, गोल्ड ट्रांजेक्शंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. ये सारी चीजें हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं, जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं. अब इसमें देखो चेंज क्या करेंगे, current transactions does not change our assets and liability status, but capital account changes our assets and liability status. Either our assets increase or decreases, or liabilities increases or decreases. Current account is a flow in nature. That means these
टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे ये हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देखते, हियर वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड में कितना आया कितना गया, एक पीरियड ऑफ टाइम, अ डे, अ मंथ, अ वीक, अ ईयर, तो उसकी हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट के अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, हियर वी डू नॉट टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, हियर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे कितना है, अभी कितना है, तो इट इज द स्टॉक इन नेचर। नाउ we'll do some questions. Whether the following items are revenue receipts or capital receipts. Some problems are given to you, you have to find out कि क्या है। Recovery of loans, पहला क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मीन्स हमने किसी को लोन दे रखा था, वो वापस ले लिया, वापस लोन आ गया हमारे पास, मतलब जब दिया था तो हमारे डेटर्स बढ़ गए थे, एसेट बढ़ गई थी, अब हमने वापस ले लिया, हमारे डेटर्स कम हो गए, एसेट कम हो गई, देनदार हमारे कम हो गए, एसेट कम हुई, इसका मतलब हमारी एसेट पे फर्क पड़ा, तो दिस विल कम अंडर कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट में विच साइड, डेबिट और क्रेडिट। नाउ वी हैव टू सी रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी मतलब पैसा वापस आया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो दिस विल बी क्रेडिट साइड। सो सॉल्यूशन इज capital account, as it decreases asset position of the country, it is an inflow of foreign exchanges, therefore a credit entry. Second is purchase of computer by the government from abroad. अगर गवर्नमेंट ने अब्रॉड से कंप्यूटर खरीदा है, अब कंप्यूटर खरीदा, कई बच्चों के दिमाग में आता है कंप्यूटर खरीद लिया, हमारी एसेट बढ़ गई, बट माइंड इट, एसेट नहीं बढ़ी। कंप्यूटर देखो, एसेट में मतलब क्या, अगर मैंने बाहर लैंड खरीद लिया, मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर होगी, मैं लैंड उठा के लेके नहीं आई, वो चेक नहीं हो सकता, बट कंप्यूटर इज लाइक अ कस्टम, मैं लेके आई हूँ, चेक हो रहा है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, उसको लेके आई हूँ, दैट कम्स अंडर दी विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। परचेज ऑफ कंप्यूटर मतलब इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो विजिबल आइटम है, ये करंट अकाउंट के अंदर आएगा, और परचेज कर रही हूँ तो पैसा वापस जाएगा, बदले में बाहर जाएगा, तो ये डेबिट साइड आएगा, बिकॉज इट इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन अब्रॉड, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में की हुई है ऑलरेडी, उस पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अब डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मिलने का मतलब क्या, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस। तो ये यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस किस में आती हैं, हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमारे आते हैं करंट अकाउंट के अंदर। अब आ रहा है, हमने बाहर अब्रॉड में ट्रांजेक्शन किया, आ रहा है मतलब इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट साइड, so it will recorded in current account, it is recorded under unilateral transfers as credit entry since it is inflow of foreign exchange. I hope these problems are clear to you. Let's see some other question. In the context of balance of payment account, state whether the following statements are true or false. We have to give true or false, and we have to also give the reasons. First is profit received from investment abroad is recorded in capital account. बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट अभी जैसे हमने डिविडेंड पढ़ा, तो ये हमारा किस में आना चाहिए था, करंट अकाउंट के अंदर, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा फॉल्स, इट इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट एज इट नीदर अफेक्ट्स द एसेट्स नॉट लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा है इंपोर्ट ऑफ मशीन्स इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, मशीन इंपोर्ट किया, यस इट इज इंपोर्ट ऑफ मशीन इज इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, सो ट्रू, all the imports and exports of the goods are recorded in trade account, which is a part of current account because it's simply import of visible items. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हमको ये क्लासीफाई करना है, कुछ आइटम्स हैं कि वो करंट अकाउंट में आएंगे या कैपिटल अकाउंट में आएंगे। पहला है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट, बाहर की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने हमारे यहाँ के शेयर्स खरीदे हैं, उसने शेयर्स खरीदे हैं तो पैसा हमारे यहाँ देगा, ये किस में आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड, और किस में आएगा, उसने खरीदे हैं तो एसेट पे आ जाती है बात, कैपिटल अकाउंट। दूसरा है इंपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम जर्मनी, का हमने इंपोर्ट किया है तो पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स है, तो करंट अकाउंट डेबिट साइड। बोरोइंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, लोन लिया है, कैपिटल अकाउंट आया है तो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू जापान, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन को वापस दिया है, आउटफ्लो, लेकिन हमारी लायबिलिटी कम हुई है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स इन अमेरिका, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स आए हैं हमारे पास, इनफ्लो करंट अकाउंट। एंड लास्ट वन वाज शिपिंग सर्विसेज बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, शिपिंग सर्विस मिली है तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट है, इंडियन कंपनी से फॉरेन कंपनी के अंदर शिपिंग सर्विसेज टू अ फॉरेन कंपनी हमने दी है, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी को जब हमने दिया है तो यहाँ पे हमें पैसे देगा बदले में, तो दिस इज इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, तो ये हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। सो that's all for today. I hope it is clear to you, very much clear to you.
All the best. I'll come again and I'll bring much more questions for you in my next video. All the best.